والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. والفرد نسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الترك لذلك هو الاعتبار. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں والفرد نسبی، جو فرد نسبی ہے، ان وافقہ، اگر اس کی موافقت غیرہ اور کوئی کرے، فہو المتابع، پس وہ متابع ہے. وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ، اور اگر ایسا کوئی متن مل جائے، یشبہہ، جو اسی کے مشابہت ہو، فہو الشاہد، پس اس کو شاہد کہا جائے گا. تتبع طرق لذالک هو الاعتبار، اور اگر اس کے طرق کو ڈھونڈنے جائے اور ان کو دیکھا جائے تو اس کو اعتبار کہتے ہیں. تو آج جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے الاعتبار، چاہے وہ متابعہ کی شکل میں ہو چاہے وہ شاہد کی شکل میں ہو. جو الاعتبار ہے یہ نکلا ہے اعتبار سے، جس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف نظر کرنا اور اسی جیسا اسی جنس کا کوئی چیز اس کا مل جانا. مگر اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو غریب ہے، فرد نسبی، یعنی ہم نے پڑھا تھا غریب یعنی جس کا راوی، جس کا روایت کرنے والا اکیلا پڑ جائے، فرد، یا اس کو غریب نسبی بولتے ہیں. یہ غریب کی دو قسمیں ہیں، الغریب النسبی والغریب المطلق. جس میں صحابی اکیلا اس کو غریب مطلق بولتے ہیں، اور جس میں اور کوئی ہو تو وہ پھر ہم نے وہ پڑھا تھا وہ سارا سلسلہ، وہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ یعنی اسی طریقے سے اگر اس کے راوی یعنی فرد نسبی ہے کوئی، تو اس کے اور کوئی ہمیں ملتا ہے اسی جنس کا، تو ایسی چیز کو ہم اعتبار کہتے ہیں، اس کا جنس ڈھونڈنا. اب ملے یا نہ ملے اس کو اعتبار بولتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو ڈھونڈے کہ ہمیں ملے، یعنی ہم دوسرے ترکوں کو دیکھیں. ہمارے پاس ایک حدیث آئی ہے، اب ہم دوسرے حدیثوں کو دیکھیں گے کیا کوئی حدیث اس حدیث سے ملتی جلتی ہے. اگر ملتی جلتی ہے تو اس چیز کو ہم اعتبار کہتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ متابعہ کے شکل میں ہو یا شاہد کی شکل میں ہو. اب متابعہ اور شاہد میں فرق ہے. اگرچہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کبھی کبھار یہ کہا کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک کے بدلے لے سکتے ہیں، جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ مسئلہ اتنا سخت نہیں ہے. فرماتے ہیں وقت تطلق المتابع علی الشاہد وبالعکس والامر فی سہل. یعنی نزہۃ نظر میں فرماتے ہیں کبھی ہم متابعہ کو شاہد کے معنی میں لیتے ہیں اور کبھی شاہد کو جو ہے متابعہ کے معنی میں لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ہدف ہوتا ہے دونوں میں ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کو تقویت پہنچائے. یعنی اب تک ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہ حدیث جو ہے، یہ شخص جو ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں اکیلے ہے. اب چاہے اس کا شواہد ہمارے پاس آ جائے یا متابعہ آ جائے، اس سے جو ہے حدیث میں فائدہ آ جاتا ہے اس چیز کا کہ ہم اس کو اور سٹرانگ کرتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھار جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو کو ہم انٹرچینجبلی بھی، جو اس کو ہم کہتے ہیں مترادف بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی اس کے بدلے یہ متابعہ کے بدلے شاہد اور شاہد کے بدلے متابعہ، یعنی دونوں کا ہم سے مراد جو ہے ایک ہی ہوتی. جس طرح میں نے ان کے الفاظ پڑھے تھے
जो उन्होंने अपनी शरह में फरमाए हैं। वक़्त तुतलक़ु, इन्हें इसका इतलाक़ किया जाता है, अल-मुताबि अला शाहिद, इन्हें मुताबिया का इतलाक़ शाहिद पे किया जाता है, व बिल अक्स यानी इसका उल्टा भी, यानी मुताबिका शाहिद पर और शाहिद का इस पर। वल अम्रु फीही सहलुन, और इसमें जो अमर है यानी मसला जो है वो आसान है। क्यों? क्योंकि आसान इसलिए है क्योंकि दोनों की जो हमारा हदफ है, हदफ यही है कि हमें दोनों में स्ट्रेंथ तकवीत ढूंढनी है। मगर जो दूसरे उलमा हैं, जो बाकी है, वो इसमें फर्क भी करते हैं। वो फरमाते जिस तरह इन्होंने खुद भी यहाँ फर्क की है, व इन वाफक गैरहु फहुवल मुताबिउ व इन उजद मतनुन, और अगर पाया जाए मतनुन उस जैसा तो उसको शाहिद कहेंगे। अब मुताबिया को अगर हम अलग करेंगे शाहिद से और शाहिद को करेंगे मुताबिया से, यानी कभी कभार हम इन दोनों को जो मुतरादिफ भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरचेंजेबल, यानी उसको उसकी जगह, इसको इसकी जगह, ऐसा भी कर सकते हैं, सहल मसला साल है। मगर असल में अगर हम इन दो को अलग अलग करना चाहे तो किस बुनियाद पर मुहद्दिसीन ने इनको अलग अलग किया है, उसकी मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं। पहले मुताबिया किसको बोलते हैं? मुताबिया के जो लफ्जी माने हैं वो मैंने आपको बता दिए। किसी चीज को देखना है वो है ताबा बिमाने वाफक, यानी किसी की मुवाफिकत करना, इसको बोलते हैं लुग़वी एतबार। मगर हदीस इस्तिलाह में किसको बोलते हैं? इस्तिलाह में इसको बोलते हैं, ये वो हदीस है जिसमें रुवात फर्द, यानी एक रावी है, उसने कोई रिवायत की है, उसके रिवायत में दूसरे उसकी मुवाफिकत करे, चाहे वो माना के एतबार से और लफ्ज के एतबार से मुवाफिकत करे, चाहे वो सिर्फ माना के एतबार से मुवाफिकत करे, माल अल इतिहाद फिर सहाबी, मगर शर्त यह है कि दोनों हदीसों में सहाबी एक ही हो, यानी सहाबी एक ही हो सकता है। इसकी मैं मिसाल दे दूंगा, उस मिसाल से आपको यह हदीस बहुत समझ में आ जाएगी। यानी अब हमें डेफिनेशन याद क्या रखनी है, मुताबिया किसको बोलते हैं? मुताबिया बोलते हैं हमारे पास एक हदीस है, वो जो है वो फर्द है, यानी वो गरीब हदीस है। अब हमने और एक ऐसी हदीस मिली, उसी जो शख्स रिवायत करता है, यानी जो उसमें रावी है, उस रावी का हमें और कुछ सपोर्ट मिलता है, चाहे उसी रावी का मिले, चाहे उसके उस्ताद का मिले, या उसके उस्ताद का उस्ताद, यानी कोई भी रावी मिले, क्योंकि उसकी भी अपनी दो किस्में मुताबिया की, या एक तामा है, एक कासिरा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो मुताबिया तामा क्या होती है और मुताबिया जो कासिरा क्या होती है। पहले तो हम इतना समझ लेंगे कि मुताबिया में उसकी मुवाफिकत करता है दूसरा, और उनमें चाहे माना के एतबार से करे या लफ्ज के एतबार से करे या सिर्फ माना के एतबार से करे, मगर एक चीज कॉमन होगी कि सहाबी एक ही होगा, यानी उस हदीस का रिवायत करने में और इस हदीस के रिवायत करने में सहाबी जो होगा वो एक ही होगा। इसको हम बोलते हैं मुताबिया। अब मुताबिया की हमारे पास दो किस्में हैं, एक को हम बोलते हैं मुताबिया तामा और दूसरे को बोलते हैं मुताबिया कासिरा। यानी मुताबिया तामा की मिसाल हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। मुतालिया तामा क्या है? यानी एक रावी रिवायत करते हैं और वैसी ही रिवायत उसके सपोर्ट में, उस शख्स के सपोर्ट में दूसरी रिवायत हमें मिलती है, तो हम कहते हैं तामा है। यानी जिस तरह उस शख्स ने रिवायत किया है उसी तरीके से इस हदीस को रिवायत किया गया है। और अगर उसके बरक्स हो, जिसको हम बोलते हैं मुताबिक कासिरा, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, मगर दूसरा शख्स पाया जाता है। अब हमारे पास इसकी मिसाल है, इस मिसाल को आप लिखने की कोशिश करें और आप इस मिसाल को जो है समझने की भी कोशिश करें। यहाँ पर मैं पहले स्क्रीन चेंज करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहां पर मैं सबसे पहले स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल जो हम इस तरह ले सकते हैं कि हमारे पास, मैं टेक्स्ट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा ताकि लिखने में आसानी हो जाएगी। तो वहां से आप देख सकते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने का आसान तरीका क्या है। हमारे पास एक हदीस है जिसको इमाम शाफई ने रिवायत किया है। इमाम शाफई ने अपनी किताब अल उम में एक हदीस नकल की है, जिस हदीस को हम यहां से देख सकते हैं। हदीस क्या है? वो रिवायत करते हैं मालिक से।
यानी शाफई रिवायत करते हैं इमाम मालिक से, और इमाम मालिक रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन दीनार से। अब्दुल्लाह बिन दीनार, चलो, यानी हमारे पास एक हदीस है जिसमें रिवायत करते हैं शाफी, शाफी रिवायत करते हैं मालिक से, मालिक रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन दीनार से, अब्दुल्लाह बिन दीनार रिवायत करते हैं इब्न उमर से। अब समझने की चीज जो है वो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए। यानी हदीस के रावी कौन है? इमाम शाफी। वो रिवायत करते हैं मालिक से, यानी अपनी किताब अल उम्म है जो इमाम शाफी की किताब है, वो करते हैं अब्दुल्लाह बिन दीनार से, अब्दुल्लाह बिन दीनार करते हैं इब्न उमर से, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर से। वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्ना रसूल काल अशहरु तिस्उन व इशरून, महीना जो होता है वो 29 दिन का होता है, 29 डेज का होता है। फला तो सूमू, पस मत रखो रोजे, हत्ता तरव हिलाल, जब तक हिलाल न देखो, क्रिसेंट न देखो। वला तुफ्तिरू, और इन्हें रोजे न, इन्हें ईद न करो, इन्हें इफ्तियारी न करो, इन्हें यहाँ से मुराद है ईद न करो तब तक, हत्ता तरहु, जब तक आप न उसको देखो, यानी हिलाल को। फ़इन गुम्मा अलैकुम, और अगर बादल हो यानी चांद न दिखाई दिया, या दूसरी चीजें यानी किसी तरीके से आप चांद न देख पाए, फ़अकमिलुल सलासीन, बस आपको चाहिए कि आप 30 दिन को मुकम्मल करें। यानी 30 दिन मुकम्मल करने की जो हदीस है, इस हदीस को इमाम शाफई ने अपनी में नकल किया है। ये है नुज़्रतुन नज़र की जो है उन्होंने मिसाल दी है खुद इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने, और मैं वही मिसाल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। शाफी मालिक से, मालिक अब्दुल्लाह बिन दीनार से, अब्दुल्लाह बिन दीनार इब्न उमर से, और इब्न उमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत करते हैं। अब हमें क्या देखना है? इसमें हमें यही चीज देखनी है कि उस हदीस में और इस हदीस में क्या फर्क है। अब लोग ये समझ रहे थे कि बाकी हदीसें जो हमारे पास आती हैं वहां से दूसरे लोग, यानी जो इमाम शाफी के दूसरे मतलब साथी थे जो इमाम मालिक से सुन रहे थे, यानी एक ही उस्ताद के पास इमाम मालिक से, वो लोग भी इस हदीस को बयान करते थे, मगर उनके लफ्ज ये थे, फ़इन गुम्मा अलैकुम, जब आप उसको देखो, फ़क़दुरूहु लहू, यानी फिर इसके लिए लफ्ज उन्होंने फ़अकमिलू, यानी मुकम्मल करो, 30 को मुकम्मल करो, उसकी जगह फ़अक़दुरू, तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब सारे लोग कहते थे ये हदीस जो है, ये हदीस हमें ये कहती है कि ये मुफरद है, यानी ये निस्बी है। क्यों? क्योंकि इमाम शाफी अकेले हैं इसको रिवायत करने में मालिक से, क्योंकि बाकी सारे रुवात जो है वो फ़क़दुरू के लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं यहाँ रिवायत, और इमाम मालिक जो इमाम शाफी जो है वो रिवायत करते हैं फ़अकमिलू से। अब हमने इस पर एतबार करना शुरू कर दिया, यानी हमने इसकी छानबीन की, इसके तुर्क ढूंढने शुरू कर दिए, तो हमें एक हदीस मिली जो इसकी मुताबिक है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल किया है। वो फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह बिन मसलमा से, यानी अब्दुल्लाह बिन मसलमा इस हदीस को रिवायत करते हैं। अगर आप ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पहले था शाफी, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ABD अब्दुल्लाह इब्नु मसलमा, शाफी एक तरफ से थे और दूसरी तरफ से हमने देखा कि अब्दुल्लाह बिन मसलमा जो है वो रिवायत करते हैं किन से? वो रिवायत करते हैं हजरत मालिक से, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह से। जब वो इमाम मालिक से रिवायत करते हैं तो वो भी यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फ़अकमिलू। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इससे पहले जो इमाम उन्होंने हदीस बयान की थी वो दूसरी किस्म की थी, अब जो ये हदीस है ये दूसरी किस्म की। मिसाल के तौर पर ये हदीस एक थी जिसको हमने आपके सामने रख दिया, मैं यहां से इसको काटता हूं। शाफी रिवायत करते हैं मालिक से, मालिक अब्दुल्लाह बिन दीनार से, अब्दुल्लाह बिन दीनार उमर से। अब इसी हदीस को इमाम बुखारी ने इस तरह नकल किया, वो फरमाते हैं हदसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा
मुझे अब्दुल्ला बिन मसलमा ने बयान किया, हद्दसना मालिक, उनको इमाम मालिक ने बयान किया, अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार, उनको अब्दुल्ला बिन दीनार ने, अन अब्दुल्ला बिन उमर, उनको अब्दुल्ला बिन उमर ने, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अन्ना रसूल क़ाल अश्शहरु तिस्उन व इश्रून लैला। तो यहाँ पर भी वही है, फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलू इद्दत सलासीन, बस तुम्हें चाहिए कि आप 30 के। अब हमें क्या मिला, यानी हमें पहले ये शक हो गया था कि इमाम शाफी की जो हदीस है वो मुफरद है, उसमें अकेले रिवायत करने में, मगर जब हमने सही बुखारी की हदीस को देखा, क्योंकि इमाम बुखारी बैद में आए थे, जब हमने अब्दुल्ला बिन मसलमा की हदीस को देखा तो हमने देखा कि अब्दुल्ला बिन मसलमा ने भी वही अल्फाज सुने जो शाफी ने सुने मालिक से, क्योंकि वो भी मालिक से रिवायत करता है। ये जो है अब्दुल्ला बिन मसलमा भी किससे रिवायत करता, मालिक से, और शाफी भी मालिक से। बाकी क्या रिवायत करते थे, बाकी रिवायत करते हैं फकदुरू। तो हम कहेंगे जो अब्दुल्ला बिन मसलमा वाली रिवायत है वो शाफी की मुताबिक है, क्योंकि सहाबी भी एक है और ये मुताबिक तामा है, यानी जो लफ्ज जो अल्फाज उन्होंने नकल किए थे यहाँ पर अकमिलू के बारे में, वही लफ्ज यहाँ पर अकमिलू के बारे में किन्होंने बयान किए हैं, अब्दुल्ला बिन मसलमा। तो ऐसी सूरत में हम हदीस को कहेंगे, इस हदीस में क्या है, इस हदीस में जो है वो मुताबियतु तामा है। अब पहली बात आपको ये बात समझ में आ गई कि मुताबियत तामा क्या है। मैं फिर से यहीं पर कहता हूं कि एक हदीस है इमाम शाफी ने में नकल किया है, उसने रिवायत की मालिक से, मालिक ने अब्दुल्ला बिन दीनार से, अब्दुल्ला बिन दीनार ने इब्न उमर से, और इब्न उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वहां पे ये कहा कि फाकमिलू, यानी तुम कामिल करो 30 दिन, यानी 30 दिन के रोजे बराबर रखो अगर आपको चांद दिखाई ना दे। अब दूसरे रुवात उसको रिवायत करते थे फकदुरू से। अब लोगों ने कहा कि हदीस जो है इसमें इमाम जो है शाफी वो गरीब है, वो फर्द है, वो अकेले है। मगर जब हमने दूसरी हदीस देखी जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, और ये हदीस नंबर जो बुखारी की है वह है 1907, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब सौ में नकल किया है और हदीस नंबर है 1907, और इस हदीस को इमाम शाफी ने अपनी किताब अल उम में नकल किया है। तो अब जो हमने देखा अब्दुल्ला बिन मसलमा के भी वही अल्फाज थे जो इमाम शाफी के अल्फाज थे, और दोनों ने अपने उस्ताद इमाम मालिक से सुने थे। तो इस एतबार से इमाम शाफी की बात को तकवीत पहुंचती है। तो जो दूसरी हदीस अब्दुल्ला बिन मसलमा की है वो इमाम शाफी की हदीस को जो तकवीत पहुंचाती है, और इस हदीस को हम बोलते हैं ये है मुताबिया। और कौन सी मुताबिया, मुताबिया तामा, यानी कंप्लीट। जो लफ्ज शाफी ने सुने मालिक से वही लफ्ज अब्दुल्ला बिन मसलमा ने सुने हैं मालिक से। अब दूसरी मिसाल जिसको हम बोलते हैं मुताबिया कासिरा, यानी ऐसी मुताबिया जो कासिरा हो, यानी पूरी उसी तरीके से नहीं हो मगर उससे थोड़ी कम हो। वहां वही वही शख्स एक ही उस्ताद दोनों चीज सुन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक हदीस है जिसको रिवायत किया है इब्न खुजैमा ने, सही इब्न खुजैमा में फरमाते हैं मिन रिवायत आसिम बिन मोहम्मद, आसिम बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये एक तो मसला हल हो गया। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ इसकी मुताबिया कासिरा जो है इसकी, यानी एक हदीस को रिवायत करते हैं आसिम बिन मोहम्मद, आसिम इब्न मोहम्मद, शॉर्ट में लिखता हूं, वो रिवायत करते हैं अपने बाप मोहम्मद बिन जैद से, मोहम्मद इब्न जैद से। वो रिवायत करते हैं अपने दादा अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला इब्न उमर से, नहीं जो इब्न उमर थे। तो वो क्या फरमाते हैं, फकल्लिमू सलासीन, वो अकमिलू की जगह कल्लिमू बोलते हैं और लफ्ज एक ही समझो, अकमिलू यानी कामिल करो, क्या करो, कामिल 30 दिन। तो ये जो रिवायत है इसमें भी हम वही देखते हैं कि इसमें भी वही चीज है, रावी एक ही है ना, क्योंकि मुताबिया के लिए शर्त हो कि सहाबी एक ही हो। दोनों किसे रिवायत करते, इब्न उमर से। और इससे पहली रिवायत जो इमाम शाफी ने रिवायत की थी उसमें भी रावी कौन थे, इब्न उमर थे। और जो सही मुस्लिम की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत है जिसमें अब्दुल्ला बिन मसलमा रावी थे, उसमें भी सहाबी कौन थे फाइनल रावी, उसमें भी वही अब्दुल्ला बिन उमर थे, यानी इब्न उमर थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर तीनों जगहों पर है, पहला मुताबिक तामा, अब ये मुताबिक कासरा है। ये मुताबिक कासरा क्यों है, और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ये चीज जो है इसको हम क्यों कहेंगे, ये जो है ये मिसाल जो है ये कासिरा है।
कासरा इसलिए क्योंकि यहाँ उस्ताद कामन नहीं है, उस्ताद कामन नहीं है, क्योंकि वहां पर कामन जो उस्ताद था वो इमाम मालिक थे। यहाँ पर ऐसा उस्ताद जो है कामन नहीं है, मगर उसके ऊपर है। यानी मोहम्मद इब्न जैद जो है इब्न उमर से वही लफ्ज इस्तेमाल, वही लफ्ज नकल करते हैं जो यहाँ पर नकल करते हैं इमाम बुखारी से। कौन इमाम जो यहाँ पर नकल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी से, वो कौन नकल करते थे? अब्दुल्ला बिन दीनार। तो यहाँ अब्दुल्ला बिन दीनार जो है वो वही बात नकल करते हैं उनसे जो ये नकल करते हैं। इसी तरह अगर हम सही मुस्लिम में देखें तो वहां पर भी एक रिवायत है, वो है मिन रिवायत उबैदुल्लाह बिन उमर, वो नाफिया से, वो इब्न उमर से, फकदुरुहु सलासीन। तो एक में हमने देखा कि वो जो दोनों चीजों में एक चीज कॉमन थी कि हर जगह सहाबी था, हमने सहाबी हर जगह देखा एक ही है, इब्न उमर। इस चीज को हम बोलते हैं, इस हदीस को, इसमें जो है वो मुताबिअत तामा है, अगर कुछ में वो था कुछ में ये था। अब दूसरी चीज जो है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वही एक ही आदमी नहीं, इमाम शाफी वाला ही उस्ताद नहीं है इमाम मालिक दोनों का, जिस तरह उधर था वहां तो नहीं है, मगर रिवायत वही है और सहाबी एक ही है। तो ऐसी हदीस को हम बोलते हैं इसमें मुताबियत कासिरा है। यहां तक तो कंप्लीट हुआ होगा। अब अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि मुताबिया किसको बोलते हैं, मुताबिका बोलते हैं मुताबिया उस हदीस को जिसमें एक रिवायत करने वाला फर्द हो और उसके सपोर्ट में, उसकी मुवाफकत में दूसरी हदीस बयान की जाए, चाहे उसी, अगर उसी निस्बत से है, उसी रावी से है, इन्हें एक ही उस्ताद से है, तो एक ही शख्स की, इन्हें मालिक की शाफी की मसलमा करता है, तो वैसा हदीस जो है वो तामा होगी। और अगर दूसरा है तो उसकी काशरा होगी। मगर यहाँ पर एक शर्त जरूरी है कि सहाबी एक ही होना चाहिए। अगर सहाबी एक नहीं है बल्कि दूसरा सहाबी है तो वो मुताबिया नहीं होगा, बल्कि वो शाहिद होगा। अब हम शाहिद की मिसाल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि शाहिद की मिसाल क्या है। इसी हदीस को अगर हम देखेंगे, फरमाए व इन वुजिदा मतनुन, अगर आपने देखा कोई ऐसा मतन, युरवा मिन हदीस सहाबी आखरा, आपने दूसरे किसी सहाबी को हदीस रिवायत करते हुए देखा, युशबिहुहु, जो इसी हदीस की मुशाबत में हो, फिल लफ्ज वल माना, लफ्ज में भी और माना में भी, और फिल माना फकत, या माने में फकत हो, फहुवा शाहिद, तो वो शाहिद है। यानी अगर दूसरा सहाबी होगा तो शाहिद होगा, अगर एक ही सहाबी होगा तो मुताबिया होगा। और फिर फरमाते हैं वह मिसाल हो फिल हदीस अल्लज़ी कद्दमनाहु, ऐसी हदीस जो इससे पहले गुजरी है जिसको हमने बयान किया है। अब उसकी मिसाल देखो, तीसरी चीज, यानी जिसको हम बोलते हैं, जिस चीज के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया शाहिद। अब इस हदीस के शाहिद हमें कहाँ मिलते हैं? इस हदीस का शाहिद हमें इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने बयान किया है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने अपनी किताब जो है नसाई में बयान किया है, सुनन नसाई में, उसमें आप ये हदीस देख सकते हो। तो हदीस क्या है? हदीस है किताब सियाम में, और किताब सियाम में जिक्र इख्तिलाफ अला अमर बिन दीनार, ये जो अमर बिन दीनार का इख्तिलाफ है इस शख्स से, उसके बारे में रिवायत है। और हदीस नंबर जो है वो है 2125, 2125। फरमाते अखबरना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जैद, वही है मोहम्मद इब्नु अब्दुल्ला इब्नु जैद, नसाई फरमाते हैं, वो इस हदीस को रिवायत करते हैं सुफियान से। तो वो इस हदीस को रिवायत करते हैं सुफियान से, वो रिवायत करते हैं इसको अमर इब्नु दीनार से। अमर बिन दीनार इसको रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्नु हुनैन से। और मोहम्मद बिन हुनैन उससे बयान करते हैं अपने अब्बास से। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने इससे पहले मुताबिक देखा, अब हम शाहिद देखेंगे, शाहिद क्या होता है। वहां पर उनमें जो वो था वो एक ही था।
क्या मसला बना इसका, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, इधर मैं करता हूँ इसको। चलिए, अगर हमने अब देखा कि हमारे पास जो हदीस है, इस हदीस को रिवायत करने वाले जो है वो इमाम नसाई रहमुल्लाह है। अब इमाम नसाई रहमुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन, गलत हो गया था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन यजीद से। समय इसका यही मसला है, फिर लगाता है उर्दू नहीं लिखना चाहिए। पहले रावी कौन है? पहले रावी ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन यजीद। इस तरह लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसे लिखना, कीबोर्ड से हो सकता है। समझना थोड़ा टिपिकल है, इसीलिए। क्या मसला बना इसका? चलो, ये क्यों नहीं रहा? तो हम बात कर रहे थे कि इस हदीस का जो दूसरी हदीस जो है, जो इसकी शाहिद है, जिसको इमाम नसाई रहमुल्लाह ने नकल किया, वो फरमाते हैं अखबरना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन यजीद। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्नु यजीद, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन यजीद जो है वो रिवायत करते हैं सुफियान, और यहां से सुफियान से मुराद है सुफियान बिन उयैना। और वो रिवायत करते हैं अमर बिन दीनार से। अमर बिन दीनार रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन हुनैन से, मोहम्मद इब्न हुनैन, और मोहम्मद इब्न हुनैन जो रिवायत करते हैं इब्न अब्बास से, अब्दुल्लाह अब्बास से, और वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो देख लीजिए अब इस हदीस की तरफ। अब हमने क्या देखा, अगर आप पिछला हदीस याद रखोगे, वहां पर क्या था? वहां पर शाफी मालिक से, मालिक अब्दुल्लाह बिन दीनार से, अब्दुल्लाह बिन दीनार इब्न उमर से, वहां पर जो था वहां इब्न उमर था। और यहां पर जो है, यहां पर अगर देख सकते हो, यहां पर इब्न उमर की जगह जो है वो कौन है? यहां पर इब्न उमर की जगह इब्न अब्बास है। अब क्या हो गया? अब दो चीजें इसमें इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ ये हो गया कि उनमें रावी दोनों में एक ही था, चाहे जो इब्न सही खुजैमा वाली हदीस थी, इब्न खुजैमा ने जो हदीस बयान की थी, चाहे जो बुखारी ने बयान की थी, चाहे जो इमाम शाफी ने अल उम में बयान की थी, चाहे वहां पर इमाम शाफी रिवायत करते हो, चाहे यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन मसलमा बयान करते हो, या चाहे यहाँ पर आसिम बिन मोहम्मद बयान करते हो, तीनों में सहाबी एक ही था। वो कौन थे? वो थे इब्न उमर। मगर जो यहाँ रिवायत, जिसको हमने यहाँ पाया रिवायत, वो रिवायत में क्या अल्फाज है? उस रिवायत के अल्फाज में आपके सामने पढ़ता हूँ। वो रिवायत इस तरह है, अखबरना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न यजीद क़ाल हद्दसना सुफियान अन अमर इब्न दीनार अन मोहम्मद इब्न हुनैन अन इब्न अब्बास क़ाल। अब हदीस में जो असल लफ्ज है वो इस तरह है, फ़इन गुम्मा अलैकुम, मैंने पहली बार वाक़ई सारी छोड़ दी, फ़अकमिलुल इद्दत थलासीना, बस आपको चाहिए कि आप 30 दिन को मुकम्मल करो। जो फ़अकमिलु इमाम शाफई ने बयान किए थे, जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने यह कहा था पहले कि ये तफरुद है, ये अकेले रिवायत करते, जबकि बाकी रुवात जो है वो लफ्ज करते फ़क़दुरू। तो उससे हमें पता चला ये हदीस जो है उस हदीस की शाहिद है जिस हदीस को इमाम
शाफी ने अल उम में नकल किया और उसी हदीस के दो हमने मुताबिक पाए। एक मुताबिक हमने पाया उसका सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन मसलमा से, और ये मुताबिक तामा था। और उसी हदीस की हमने और एक पाया जिसको मुताबिया कासरा बोलते हैं, जिसको सही इब्न खुजैमा में इमाम इब्न खुजैमा ने बयान किया है आसिम बिन मोहम्मद की रिवायत से। और इसी तरीके से हमने उसी रिवायत का एक शाहिद पाया जिस रिवायत को नकल किया है इमाम नसाई ने, और इमाम नसाई उसको मोहम्मद बिन हुनैन से नकल करते हैं और वो रावी जो है इब्न अब्बास से नकल करते हैं। तो इस तरह ये शाहिद होगी। इसीलिए अगर आप देखोगे, आप कहते हैं उस हदीस के अब हमारे पास 3-4 आ गए गवाह, तो कुछ मुताबिक है कुछ शाहिद है। इसीलिए इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कभी कभार हम मुताबिक को जो कहते हैं शाहिद, और कभी शाहिद को जो है मुताबिक कहते हैं। वल अम्रु फीही सहलुन, इसमें जो मसला इजी है। मैं कंक्लूड करता हूँ मुताबिक और शाहिद में क्या फर्क है। मुताबिक में यह होता है कि सहाबी एक ही होता है, सहाबी एक ही हो, और अगर उस्ताद यानी उसी रावी का दूसरा रावी सपोर्ट में हो तो मुताबिक तामा है। अगर वही रावी का रावी सपोर्ट ना हो बल्कि उसके उस्ताद में सपोर्ट हो या उसके आगे कोई सपोर्ट हो तो उसको मुताबिक कासरा बोलते हैं। अगर उसी हदीस के सपोर्ट चाहे मतन के एतबार से हो या चाहे मतन यानी जो लफ्ज और माना के एतबार से हो, चाहे माना के एतबार से खाली हो, अगर दूसरा कोई सहाबी वैसी रिवायत बयान करता है तो ऐसी हदीस को हम बोलते हैं ये शाहिद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर यहाँ तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।